Good morning, dear students. I hope you all are very fine. So let us continue with our lesson, that is force and pressure. Yes, we have started that lesson and we have learned about the force and we have started about the pressure. Pressure is force per unit area. Okay. So and what we have seen some examples in the previous video that if we decrease the area, the pressure will be more. Now let us see the opposite case. At some places like इन आर डेली रूटीन हम क्या करते हैं, हमको प्रेशर कम लगाना होता है, इसीलिए वी इंक्रीज द एरिया. सो वी डू अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैड ऑलरेडी सीन. सो लेट अस सी हाउ टू रिड्यूस द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया और उसके क्या क्या लाइक एडवांटेजेस है एंड वेयर डू वी यूज देम. सो यू मस्ट हैव सीन द स्कीव्स जो होते हैं उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है. द एरिया इज मेड मोर सो दैट pressure कम हो and of course the person who is doing that will not sink inside the ice. ओके देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स जो होते हैं उसके जो व्हील्स होते हैं पीछे के वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. लाइक द एरिया इज मच मोर. तो वाई इज दैट एरिया मोर? बिकॉज मोस्टली जो ट्रैक्टर्स है विच आर यूज इन द फील्ड. अभी कुछ फील्ड्स ऑफ कोर्स इन द फील्ड इफ दे आर यूज्ड देयर इज वाटर लॉक्ड इन दैट. सो देयर इज वाटर, so that tractor should not go inside, it should not sink inside the that muddy soil. इसीलिए वो जो ट्रैक्टर्स के जो व्हील्स होते हैं द एरिया इज मेड मच मच लार्जर so that the tractor will not sink into the ground. Okay, and it will move very smoothly. देन ऑल्सो आपके जो अपने बैग्स देखे होंगे, बैग्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं द स्ट्रिप्स दे आर वाइडन. वो स्ट्रिप्स अगर वाइड नहीं हो यू कैन लाइक एक्सपीरियंस दो बैग्स लो जो कि लाइक सेम हेवी है, दे आर हेवी इक्वल. सो यू कैन सी एक को से वाइड स्ट्रिप है और एक को थोड़ी सी वाइड नहीं है. तो यू कैन सी एंड होल्ड इट ऑन बोथ द शोल्डर. यू सी that bag which has wider strip, you feel better, like you can hold it for more time. So that is the reason why the bags, the strips of the bags, they are kept wider so that you will have less pressure on your shoulder and it will not pain. You can carry the bag very easily. Okay, then you can see the example. अगर हमको अच्छे से समझना है इंक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन प्रेशर एंड ऑल्सो यू कैन सी क्या करना है हम लोगों को. If you just see, we have taken the rectangular box, okay, over here, and you can see उसका अगर smaller area हम नीचे रखें, if the smaller area is at the bottom, अगर वो smaller area पर rest कर रहा है तो उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि वो पूरी बॉडी का प्रेशर उतनी मतलब वो जो जितना भी बॉक्स है उसका प्रेशर छोटे से एरिया पे है. सो ऑफ कोर्स दैट मोर प्रेशर विल बी देयर. लेकिन when you keep that space of that box downside which has more area or which has the biggest area, तो प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा. द प्रेशर विल बी लेस क्योंकि क्या होता है उसका जो पूरा वेट है ना वो ज़्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. हैंस द प्रेशर पर यूनिट एरिया वी आर सेइंग. ओके, so the pressure per unit area will be less in the second case. Okay, then let us see this example. Just look at this example. See the positions of that person in A, B, C and D. You see, tell me that in all this position where the child will exert least pressure on the ground. Try to think in your mind. Okay, though the answer is given but you try to think. See the you can see that the boy like you can see downside वो जो shaded part है उसके नीचे बताया है that is actually the area. तो pressure कम चाहिए तो just find where is more area. The more area is in the B diagram. Okay, in the B position. इसीलिए the person or the child who is in position B will have less area, less pressure as he has more area covered. Okay, so this is how we can find less area more pressure and more area less pressure. It is very simple. Okay, then we have liquid pressure. जैसे solid, ये सब solid देखे हमने, वैसे ही liquids also exert pressure. Yes, they do. So the pressure exerted by a stationary liquid, okay, which is kept in a container and at any point inside the liquid, that is called as the
hydrostatic pressure or the liquid pressure. So liquid pressure is also called as hydrostatic pressure. Is nothing but the pressure exerted by a liquid on its कंटेनर पे भी और लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज द लिक्विड प्रेशर. ओके, सो द लिक्विड पुशेस ऑन एवरी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद इट. तो लिक्विड जिस भी सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, लिक्विड विल ट्राई टू पुश दैट ऑलवेज. ओके, तो कभी आपने देखा होगा, इफ़ यू फिल अ बकेट, एकदम फुल भर दी, तो बकेट जो प्लास्टिक की है तो उसका शेप थोड़ा, मतलब इफ़ यू ट्राई टू होल्ड इट, यू विल सी इट गेट्स डिफॉर्म. ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द लिक्विड प्रेशर. या फिर बलून में जब अपन पानी भरते हैं तो इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द बलून. यू कैन फील, ओके, बलून को बाहर से अगर हम टच करेंगे, सो यू कैन फील द प्रेशर विच इज फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द liquid which is filled in that balloon. So this is the liquid pressure. So let us see some characteristics of the liquid pressure. So liquid pressure on the bottom of container, of course मैंने बोला कि it applies pressure on each point of the container. So you see the liquid pressure on the bottom of container, it doesn't depend on area. Bottom का area कितना भी हो, it will apply same pressure. It will apply same pressure. वो bottom इतना हो या इतना हो, bottom of the container, but the pressure applied by the liquid will be same in all the cases. Okay, and how will be that pressure? It will be perpendicular to the base. The pressure of the liquid or pressure by anything will always be perpendicular. Okay, and the liquid's pressure at any point inside the liquid depends upon the density. तो वो किस पे डिपेंड करता है लिक्विड का प्रेशर, कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है. जो लिक्विड ज़्यादा डेंसर है, दो लिक्विड लो इक्वल लो, ओके, तो जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा है, दैट लिक्विड विल हैव मोर प्रेशर ऑन दैट कंटेनर. वाटर लो और ग्लिसरीन लो, ग्लिसरीन विल हैव मोर प्रेशर क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. और प्रेशर विल डिपेंड ऑन हाइट. दोनों ट्यूब लो, जैसे इट इज शोन ओवर हियर, यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट, ऐसे दो कॉलम्स दिए हैं, दो ट्यूब है और नीचे से रबर बलून्स लगाए हुए हैं. एक में लिक्विड जो है, इन बोथ द लिक्विड्स आर फिल्ड, एक लिक्विड की हाइट कम है, दूसरी की ज़्यादा है. यू सी जो रबर बलून है वो दूसरी सेकेंड केस में वो ज़्यादा, यू कैन सी इट इज़ मोर, द एरिया ऑफ दैट इज़ मोर. क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ गई ना लिक्विड की. So the pressure of liquid depends on density और height. सेम डायमीटर के दो अगर आपने कॉलम लिए हैं या कंटेनर्स लिए हैं, लेकिन हाइट अगर डिफरेंट है लिक्विड की, ओके, जितनी हाइट तक वो भरा है, सो इफ मोर विल बी द हाइट, मोर विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ओके, एंड लिक्विड एक्सर्ट साइडवेज प्रेशर, साइड में भी प्रेशर. और आप देखो एक बॉटल ली आपने, सपोज, ओके, प्लास्टिक की बॉटल में पानी भर दिया और उसको इन द लास्ट डायग्राम एज यू कैन सी, व्हाट यू कैन डू, क्या करना है आपको, उसको होल्स बनाने हैं केयरफुली. ओके, यू टू मेक द होल्स टू दैट बॉटल. होल्स बनाने के बाद एक ही मतलब वो एक ही क्या बोलेंगे, एक ही इस पे हो, लाइक द सेम हाइट. ओके, और अलग अलग जगह पे सेम हाइट पे यू टू जस्ट मेक द होल्स एंड फील द वाटर. तो देखो पानी कितना दूर जाता है. फ्रॉम ईच होल द वाटर विल गो अप टू सेम डिस्टेंस. इट विल गो अप टू सेम डिस्टेंस. इसका मीनिंग क्या है कि एट इक्वल हाइट द वाटर अप्लाइज और द लिक्विड अप्लाइज सेम प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स. ओके, सो दिस इज इट. देन an external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly throughout the liquid. बाहर से अगर हम लिक्विड को कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अब ऊपर से सरफेस से अगर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है कि वो प्रेशर सिर्फ सरफेस तक ही रहेगा. पूरे लिक्विड, द होल लिक्विड विल फील द सेम प्रेशर. ओके, देन और एक तो हमने देखा कि सेम हाइट पे द लिक्विड अप्लाइज सेम प्रेशर. और डिफरेंट हाइट पे अगर होल्ड करके देखें तो यू कैन ट्राई इट आउट. इट इज़ वेरी सिंपल. बॉटल लो, जो ऐसे ही बहुत सारी पानी की बॉटल्स होती है हमारे यहाँ पे, प्लास्टिक की बॉटल्स में भी यू कैन फील द वाटर. फर्स्ट मेक द होल एंड देन फील द वाटर. अभी क्या करो, आपको क्या करना है, टेक अ बॉटल और उसको होल्स बनाओ, सेम साइड पे बनाओ, लेकिन एक के नीचे एक ऐसे बनाओ, एंड देन फील द वाटर इन दैट बॉटल. एंड यू सी सबसे ऊपर वाला जो होल है उसमें से जो पानी आएगा इट गोज क्लोज. देन उसके नीचे वाला विल गो अ बिट लॉन्गर.
ओके, इट विल गो अ बिट फार, सबसे नीचे वाला विल गो अगेन फार. व्हाट डज इट इंडिकेट? जिस होल से पानी ज़्यादा दूर तक गया है, जिस होल से पानी ज़्यादा दूर तक गया है, दैट होल और दैट व्हाट वी कैन से एट दैट हाइट द लिक्विड हैज़ मोर प्रेशर. फिर उसके ऊपर थोड़ा कम है, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है. तो व्हाट डू वी सी कि प्रेशर जो है वो ऊपर से नीचे तक बढ़ते जाता है. द लिक्विड प्रेशर डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा लिक्विड का. सो दिस फिगर विल शो यू द सेम थिंग, क्योंकि सबसे नीचे वाले होल में अब जितना ज़्यादा नीचे होल करते जाओगे ना, वो पानी उतना ही ज़्यादा दूर तक जाएगा. You try this activity out and send me the videos of that. Okay, it is very simple and you will understand it in much detail. Okay, then there is atmospheric pressure. Fluid pressure exert करता है. Liquid is a fluid. Air is also a fluid. Atmospheric pressure, that is the pressure in air around us. हमारे आजू बाजू में एटमॉस्फेयर में जो एयर है, that air applies the pressure, that is the atmospheric pressure. Okay, and that atmospheric pressure is due to the weight of the air. Okay, तो अगर हम कुछ ले, जैसे कि एयर का कुछ एरिया ले, लाइक 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर में एयर का प्रेशर, इफ वी विल काउंट, दैट विल बी ऑलमोस्ट 1000 kg. सो दैट मच बिग इज द एयर प्रेशर. लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आई टेल यू फ्यू एग्जांपल्स. ये जो रबर सकर्स जो होते हैं, व्हाट डू वी डू? रबर सकर हम वी कैन फिक्स इट ऑन द वॉल जस्ट बिकॉज रबर सकर मतलब उसके अंदर वैक्यूम है, और व्हेन वी विल फिक्स इट ऑन द वॉल, तो ये रबर सकर है और उसके साइड में एटमॉस्फेयर इज सप्लाइंग प्रेशर, तो वो प्रेशर रबर सकर को बाहर मतलब फिक्स कर देता है. द प्रेशर इज कंटिन्यूसली गेटिंग अप्लाइड ऑन दैट रबर सकर एंड हेंस द रबर सकर इट गेट फिक्स्ड ऑन द वॉल. So it is that important, you see, it is just because of the atmospheric pressure. Okay, so atmospheric pressure, you like to tell about atmospheric pressure, that is the layer of air which envelops the earth. Okay, जो 1000 किलोमीटर तक होता है from the ground. And the pressure, हमारे बॉडी में जो प्रेशर है, अब देखो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, क्या? ब्लड, which is a fluid in our body, तो that is a fluid pressure, और air which is fluid, तो ये दोनों प्रेशर बैलेंस होते हैं. तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना ही प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर होता है ब्लड का. ओके, एंड दे आर इक्वल एंड हेंस दे आर बैलेंस्ड. इसीलिए हम ऐसे हैं, वी आर बैलेंस, लाइक ब्लड बाहर नहीं आता है. सोचो, एक साइड का प्रेशर कम हो गया तो जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ का फ्लूइड बाहर आएगा, इट विल गो. तो जैसे हम माउंटेन पे जाते हैं ना, इफ़ यू सी, जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर के हाइट पे, द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है. हमारा प्रेशर तो उतना ही है, वो तो कम नहीं हो रहा है. तो सोचो, बाहर का प्रेशर कम है और हमारा उतना है, तो कंपैरेटिवली हमारा बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है. इसीलिए द नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग. आपने देखा होगा, नोज़ में से ब्लड आता है, ईयर्स में से ब्लड आता है किसी किसी को जब हम एक हाइट पे जाते हैं. तो वो क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है और हमारा प्रेशर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. इसीलिए द फ्लूइड स्टार्ट्स कमिंग आउट. बलून में पानी भरा है और उसको स्क्वीज़ करो, मतलब क्या कर रहे हो? यू आर अप्लाइंग प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, तो वो पानी बाहर आएगा. इट इज़ द सेम वे. ओके, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स है कुछ. सीरिंज है, सीरिंज में जब हम पानी भरते हैं, सीरिंज एंड स्ट्रॉ सेम है. सीरिंज है या स्ट्रॉ है? व्हाट? सीरिंज एंड स्ट्रॉ सेम. सीरिंज में जब आप वो ऊपर खींचते हो, ठीक है, दैट थिंग, एंड मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द सीरिंज. सीरिंज के अंदर जो प्रेशर है वहाँ का डिक्रीज कर रहे हो. एंड सेम थिंग व्हेन यू आर सकिंग समथिंग, सकिंग अ लिक्विड बाय योर माउथ थ्रू अ स्ट्रॉ, तो यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम द स्ट्रॉ. लेकिन एटमॉस्फेयर क्या, यू कैन सी इन द डायग्राम इट इज शोन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेटिंग अप्लाइड ऑन द वॉल, ऑन द लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड. हमने देखा है ना, सरफेस के लिक्विड पे इवन दो द प्रेशर इज ऑन द सरफेस बट दैट स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली एवरीवेयर इन द लिक्विड. तो क्या हो गया? लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा है और स्ट्रॉ के अंदर का प्रेशर कम है.
So where will the liquid go? From higher pressure to lower pressure. So the liquid will go from the higher pressure, which is the liquid in that container, and that will go into the straw, and hence we are able to suck the liquid from the straw. So it is all about the pressure. So see, pressure is very important. Atmospheric pressure might be a fluid pressure or any pressure in any way. Okay, so I hope you have understood this lesson. Try out the activities and learn few more aspects. Okay, so till that time, take care of yourself, stay home, stay safe. Goodbye.